What are the tools to check the central tendency of a given data? So mean, mode, median. Mean, mode and median. Okay, mean means sum of all the elements divided by total number of observations. Mode means the highest frequency value, and median means the middle value. Okay, so it depends on even and odd number of observations. Okay, in some so accordingly you have to select your middle value. That is the our first topic, and central tendency. I think in next topic that is the dispersion. Okay, or the scatteredness. Okay, what are the tools to check the dispersion present in the given data? What are those tools to check the dispersion present in the given data? बोलो, क्या क्या देखा था आपने डिस्पर्शन में? यस, Standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन एंड Variance. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, गुड. ठीक है. फिर उसके आगे ये सारा हमने कवर किया है ऑलरेडी. वेदर वी हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट, जस्ट लेट मी नो वेदर वी हैव स्टार्टेड दिस. बस इंट्रोड्यूस किया था ना मैंने, एग्जाम्पल नहीं लिए थे. करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. या, ओके. या, एंड आई विल रिवाइज वन मोर टाइम, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें कवर करना ही है. बस एक बार फॉर्मूलेज रिवाइज कर देता हूँ. सो या, सो सेंट्रल टेंडेंसी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूला रिवाइज करता हूँ मैं. ओके, इन दैट टू फोकस मोर ऑन द मीन, है ना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? विदाउट फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय total number of observation, where I runs from say 1 to n, है ना. This gives you mean. This is without frequency. What is the formula in terms of frequency distribution? Yes, frequency distribution मतलब आपको पता है xi होगा and frequency का भी कॉलम होगा. So what is the formula in this case? Summation. Yes. What is the mean in case of frequency distribution? Summation of xi divided by summation of fi. Very good. Okay, divided by summation of fi, and in general this is denoted by capital N. Good. इसमें इतना पार्ट हमें चाहिए. Okay. Next is I think dispersion. Okay. There are two tools. One is the standard deviation. Can anyone tell me the formula of standard deviation? It is generally denoted by sigma, और आपको मैंने सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था. So can anyone tell me this? What is in first bracket? Sigma square without frequency. Without frequency. What is that formula? बोलो. Yes. 1 by n summation xi square minus what? X bar. Minus x bar square. This is without frequency. And what is the formula with frequency? 1 upon capital N. This small n is replaced by now capital N. What is the summation? What is under summation? Summation of fi xi square, है ना. जितने मतलब xi repeated fi times, so you have to multiply it by fi, है ना, minus mean. ओके, मीन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी बेसिकली ये वैल्यू आएगी. सेकंड केस, मीन इन दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एंड व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला? इफ यू रिमेंबर, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था. व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला? 1 by n समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n. किसी को याद है क्या? xi माइनस x बार स्क्वायर. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है. ठीक है, दिस इज द विदाउट फ्रीक्वेंसी. विद फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या चेंज होगा? fi बस मल्टीप्लाई होगा. सो विथ फ्रीक्वेंसी इफ आई वांट टू राइट दिस, देन इट बिकम 1 अपॉन कैपिटल N समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n fi xi माइनस x बार
whole square. That is all about standard deviation. And what is the coefficient of variation? How it is defined? It is sigma. Again, can you repeat? Sigma. Sigma upon mean multiply by 100. Okay, so coefficient of variation gives you value in terms of percentage, and then it become more easy to check the variation or the dispersion present in the given data. Okay, more variation, coefficient of variation implies less consistency. इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे. Okay, and less variation implies more consistency. So these are the some topics that we already covered in our last few sessions. Okay, now in today's session we will define the movement. Okay, just 1 minute. So what is movement? The earth movement. Okay, ये just 1 minute. Just give me 1 minute. मैं last time भी change करने वाला था. I don't want this result in a frequency distribution, क्योंकि frequency में convert करना इतना difficult है ही नहीं. तो now onwards I will consider all the formulas in your regular domain. If you want to write, you can easily write down in frequency. Yeah. Now this is fine. Just 1 minute. Take some time. Okay. So now let me define the moment now. Okay, so the earth movement about mean, remember this word about mean, is denoted by mu r. तो अभी इसके आगे जब भी ये नोटेशन आपको दिखाई देगा, how you read this? This is the earth movement about mean. Earth movement about mean. Okay, and it is defined as mu r is equal to 1 upon n summation I runs from 1 to n xi minus x bar raised to r. Okay, and उस टाइम पे भी आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था, what is the relation between movement and standard deviation? What is the relation between movement and standard deviation just from this definition? Yes, what is the relation? बोलो जल्दी. What is the relation between movement and standard deviation? Sir, that is second moment is equals to standard deviation. Okay, almost close. Under root of the second movement is equal to standard deviation. So it means if I put r equal to 2 here, you will get mu 2 is equal to 1 upon n summation I runs from 1 to n xi minus x bar square. And if I take its under root, okay, it is actually nothing but standard deviation. This is the definition of standard deviation. So you will get this result, that mu square is equal to mu 2, or mu is equal to under root of sigma is equal to under root of mu 2, or mu 2 is equal to sigma square, like this. Okay, ये भी आगे formula आने वाला. Okay, so this is the straightforward definition, and आपको ज़्यादातर syllabus में you have to focus on only first 4 movements. Okay, it means you have to calculate only mu 1, mu 2, mu 3 एंड म्यू 4. आपको इतना ही करना है, इसके आगे के मूवमेंट्स आपको सिलेबस में नहीं है. तो आपको सारे क्वेश्चंस, ऑल दोज क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन ओनली फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल मूवमेंट. अबाउट मीन इज द सेंट्रल वैल्यू, सो दिस मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल मूवमेंट्स. रिमेंबर दिस वर्ड्स. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? द अर्थ मूवमेंट अबाउट एनी रैंडम नंबर अदर देन मीन, यू कैन से, है ना, अदर देन मीन इट इज डिनोटेड बाय म्यू डैश ऑफ आर. तो आपको पहले ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, म्यू आर एंड म्यू डैश ऑफ आर में. बोथ आर दी मूवमेंट, बट दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल मूवमेंट, और इट इज अ मूवमेंट अबाउट अ मीन, एंड दिस इज सिंपली अ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, यू कैन से. दिस इज मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट. ओके, सो ये नोटेशन आप याद रखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि कौन सा मूवमेंट गिवन है. वेदर वी हैव गिवन अ मूवमेंट अबाउट अ मीन, और वेदर वी हैव गिवन अ मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली. डैश का मीनिंग क्या होता है? वो अबाउट पॉइंट मूवमेंट है, अदरवाइज इट इज अ मूवमेंट अबाउट मीन. जनरली इट इज कॉल्ड अ सेंट्रल मूवमेंट. ओके, एंड कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन? म्यू डैश ऑफ आर की डेफिनेशन क्या होगी? इफ आई जस्ट चेंज दिस वर्ड बाय दिस,
व्हाट इज दैट डेफिनेशन? क्या होगी डेफिनेशन? अबाउट मीन की जगह पे अगर अबाउट नंबर में लिखता हूं तो डेफिनेशन क्या होगी? यस, अबाउट मीन के जगह पे अगर मैं नंबर लिखता हूं, नंबर ए, तो व्हाट इज माय डेफिनेशन? RH moment about a number. हाँ, सो हाउ आई राइट दिस? 1/n xi माइनस क्या लिखना होगा? A. ए लिखना होगा, ठीक है, इतना ही चेंज होगा, अदरवाइज डेफिनेशन सेम। ओके, एंड नाउ let us first understand what is the relation between this mu r and mu dash r only for first 4 moments. Okay, so these are the relation. ये मैंने अभी डायरेक्ट लिखा है, इसका जो प्रूफ है दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर बुक इफ व्हाट यू कैन रेफर, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. ओके, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने, एंड अगेन ये आप रैंडमली नहीं याद रख पाओगे. ओके, यूज योर लॉजिक, कैसे भी आप यूज करो एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स. ओके, सो फॉर एनी given data mu1 is always 0. mu1 is the central moment, first central moment, it is always 0. mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. See this number is totally random. आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. आप किसी भी पॉइंट के अबाउट म्यू डैश कैलकुलेट करो तो जो mu2 की वैल्यू वो हमेशा क्या आने वाली है? mu2 डैश माइनस mu1 डैश होल स्क्वायर. यू कैन वैरी दिस a. मीन तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स होगा, बट ए आप वैरी कर सकते हो. आप किसी भी ए के लिए कैलकुलेट करो, फॉर एनी ए दिस इज ऑलवेज इक्वल. mu2 इज इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश होल स्क्वायर. नेक्स्ट mu3 इज इक्वल टू mu3 डैश माइनस 3 mu1 डैश mu2 डैश प्लस 2 mu1 डैश क्यूब. mu4 इज mu4 डैश माइनस 4 mu1 डैश mu3 डैश प्लस 6 mu1 डैश स्क्वायर mu2 डैश माइनस mu1 डैश रेस टू 4. ओके, अभी आप कैसे याद रखते हो, डिपेंड ऑन यू, बट आपको मैंने बोला था mu2 है तो पहला नंबर mu2 डैश आएगा, mu3 है तो पहला नंबर mu3 डैश आएगा, mu4 है तो पहला नंबर mu4 डैश आएगा. ठीक है, लास्ट नंबर क्या होता है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. 3 है तो 1 आएगा, 3 है तो सॉरी हाँ, एज इट इज पावर है ना, जस्ट 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस. लास्ट नंबर क्या है? mu1 डैश का स्क्वायर, जो भी पावर है वो है ना, यहाँ पे mu1 डैश का क्यूब और यहाँ पे mu1 डैश रेज टू 4. ओके, एंड इन बिटवीन mu1 डैश रिपीट करना है until you get this 3. ओके, सो mu1 डैश mu2 डैश, नेक्स्ट यहाँ पे mu1 डैश mu3 डैश mu1 डैश mu2 डैश. ठीक है, 2 3 और 4 का ये लास्ट. ऐसे आप कैसे भी लॉजिक से आप यूज़ करो, बट किसी ना किसी लॉजिक से ऐसे याद रखो कि कहीं पे साइन की मिस्टेक ना होनी चाहिए और ये पावर भी प्रॉपर आपको कंसिडर करना है. सो डिपेंड ऑन यू, इसमें मैं कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला. अभी मुझे तो याद हो गया ये बार बार लिखते समय, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ये आपको कैसे भी करके याद रखना होगा. ओके, सो दिस आर द रिलेशन बिटवीन द मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट एंड अबाउट अ मीन. नाउ लेट अस सी सम रिमार्क्स ऑन दिस पॉइंट. ओके, first is mean. There is one more way to calculate a mean of your given data. Okay, तो वो रिजल्ट क्या है? x bar is equal to, okay, take any random point, calculate the movement, first movement about this point. डैश से करना होगा क्योंकि ये रैंडम पॉइंट है. take any random point, calculate the first movement about this point, call it as mu1 dash, then a plus this mu1 dash gives you mean. This is the result. A, that number, plus the moments about this number, first moment about this number is equal to x bar. ठीक है, नेक्स्ट ये तो अभी हमने देखा, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू mu2. एंड नाउ द 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सारे थियरी आपकी इस पे डिपेंड है. सो व्हाई वी कैलकुलेट मूवमेंट्स? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस. ठीक है, हम मूवमेंट इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्यूनेस बीटा 1 की वैल्यू चाहिए, दैट इज जनरली कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. नोटेशन आर फिक्स, बीटा 1 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एंड नेक्स्ट जो हमें वैल्यू चाहिए बीटा 2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस. ठीक है, हाँ, अभी आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा. जिससे अभी तक आपको पता है सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपको एक एवरेज वैल्यू समझ में आती है, डिस्पर्शन से आपको स्कैटर्डनेस समझ में आता है, वैसे मूवमेंट से या स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से क्या समझ में आएगा, दैट वी विल सी इन कमिंग स्लाइड्स. ओके, सो अगेन वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. बीटा 1 इज इक्वल टू mu3 स्क्वायर अपॉन mu2, आई थिंक ये क्यूब है,
देयर इज सम करेक्शन, आई थिंक ये क्यूब है, mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब, ओके, एंड आई विल करेक्ट दिस फाइल, mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब, बीटा 2 आपका क्या होता है, mu4 अपॉन mu2 स्क्वायर, mu4 upon mu2 square. Okay, now let us first understand what is this skewness and what is this kurtosis. Okay, see, skewness means beta 1. Okay, so this skewness gives the imbalance and the asymmetry from mean of the data. See, so that is generally called as positive skewness and negative skewness. Remember this graph, okay, which has a longer tail towards the right, you can say this has a longer tail towards the right, this has the longer tail towards the left, like that, right? So this type of distribution is called as negative skew, and this type of distribution is called as positive skew. So this you can you will get this information of a given data using the coefficient of skewness. बीटा 1 से बस आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, ओके, कि वेदर इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस और वेदर इट इज नेगेटिव स्क्यूनेस. ओके, अभी देखते हैं कि आपको ग्राफ की कितनी अंडरस्टैंडिंग है. अगर मैं ये ग्राफ कंसिडर करता हूं, मार्क्स वर्सेस स्टूडेंट का, ठीक है, और चलो अपने इस सब्जेक्ट का स्कोर हम कंसिडर करते हैं, है ना, मार्क्स वर्सेस स्टूडेंट का, और अपना यही सब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं. ओके, if I want a good result in my subject, okay, so then that graph must be what, फिर से सुनो क्वेश्चन मेरा क्या है, ये एप्लीकेशन है कि अगर एक सिंपल आप ग्राफ कंसिडर करो, मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके, चलो इस सब्जेक्ट के आपके I1 के किसी भी एग्जाम के आप मार्क कंसिडर करो, ओके, फॉर अ गुड रिजल्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट आई वांट विच ग्राफ, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, कौन सा आना चाहिए अगर मुझे एक बेटर रिजल्ट चाहिए तो इन माय सब्जेक्ट, नेगेटिव स्क्यूनेस. ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 0, 1 कुछ भी रेंज देते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 या 100, है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस केस में more number of students are like say above 30 or above 60 marks, okay, so this gives me a good result. But if I consider this graph, many students are less than 40, ये रैंडम बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपको एक आइडिया आ जाती है कि कैसा मेरा रिजल्ट है, ठीक है. सो इफ आई गेट अ पॉजिटिव स्क्यू ग्राफ, इट implies my result is not good, okay, my subject result is not good, but in this case I can say that my result is good, okay. So likewise you can use this tool, okay, to check the symmetry or asymmetry present in the given data, ठीक है, या इससे आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ सकते हो, ठीक है. दैट इज वन पार्ट. एंड कैसे ये सब कुछ आपको मतलब ये मैंने ग्राफ से बोला है डायरेक्टली आपको, ओके, बट यूजिंग स्टैटिस्टिक्स विदाउट प्लॉटिंग अ ग्राफ आप डायरेक्टली एक चेक कर सकते हो. कैसे? आपको पहले सारे मूवमेंट्स कैलकुलेट करने, mu2 mu3 ये सारे आपको मूवमेंट्स कैलकुलेट करने, ठीक है. फिर उसके बाद बीटा 1 कैलकुलेट करो, mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब. इफ बीटा 1 इज पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव स्क्यूनेस, बीटा 1 नेगेटिव स्क्यूनेस. इट इज 0 मीन दैट ग्राफ इज नॉर्मल, मतलब एवरेज रिजल्ट यू कैन से. इज दिस क्लियर? पहला पार्ट समझ में आ गया आपको, बीटा 1 का क्या यूज होगा, कैसे रियल लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हो. If it is positive, beta 1 is positive skewness, negative skewness equal to 0 means normally distributed. And next is the coefficient of kurtosis. So what kurtosis tells you? Kurtosis actually measure the thickness, okay, of a distribution or thickness present in the given data. Okay. So for example, if it has a high peak like this, ये आप देखो, then it is called as leptokurtic. If it has a high peak, then it is called like this. Already मैंने explain किया था शायद last session में. Then it is called as leptokurtic. If it is say average, okay, or normal, then it is called as mesokurtic. If it is flat like this, then it is called as mesokurtic. ठीक है? So these three types of nature you can determine using this kurtosis. इस पे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में. सो इन विच केस यूर गिवन ग्राफ इज लेप्टोकर्टिक, इन विच केस यूर गिवन ग्राफ इज मेसोकर्टिक, सॉरी, एंड इन विच केस यूर ग्राफ इज प्लैटिकर्टिक. सो दैट यू कैन डिटरमाइन
using this kurtosis. And how you determine this, इसके लिए रिजल्ट है. So just calculate beta 2, which is mu 4 upon mu 2 square. If that value beta 2 is greater than 3, then your graph is leptokurtic. If that value is equal to 3, then your graph is mesokurtic. And if it is less than 3, then your graph is platykurtic. These are the results. तो ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके बस ये देखना है कि whether it is equal to 3, less than 3 or greater than 3, है ना. And accordingly you have to write down your observation or your conclusion. Okay. And now I think we are ready to take some examples on this. Okay. So कैसे क्वेश्चन आपको इस पे आने वाले वो पहले डिस्कस करते हैं. The first 4 movements of a distribution about the value 5 are this. बोलो क्या गिवन है. कैन एनीवन टेल मी द गिवन थिंग्स. इससे आपको यहाँ एक ही स्टेटमेंट मैंने रेडी किया. फ्रॉम दैट जस्ट टेल मी द गिवन थिंग्स. बोलो क्या है. अबाउट अ वैल्यू बोला है तो बेसिकली क्या है. ए पॉइंट है. इट इज नॉट अ मीन. अदर देन मीन जो भी पॉइंट होगा दैट वी हैव टू डिनोट इट बाय कैपिटल ए. अदर देन मीन जो भी पॉइंट होगा दैट वी हैव टू डिनोट इट बाय कैपिटल ए. ओके. नाउ व्हाट इज दिस 2, 20, 40 एंड 50. व्हाट आर दिस. दिस आर द मूवमेंट्स अबाउट व्हाट वैल्यू 5. 2, 20, 40 एंड 50. दिस आर द मूवमेंट्स अबाउट अ पॉइंट ए. तो कैसे डिनोट करेंगे आप. हाउ यू डिनोट दिस. mu1 डैश या विदाउट डैश. डैश. ये मीन नहीं, अबाउट मीन नहीं, अबाउट अ वैल्यू है. सो दिस mu1 डैश इज 2, mu2 डैश इज 20, mu3 डैश इज 40 एंड mu4 डैश इज 50. ओके डन. पहला स्टेटमेंट हो गया. फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स. मतलब क्या कैलकुलेट करना है. mu1, mu2, mu3, mu4. वेरी गुड. mu1, mu2, mu3 एंड mu4. नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने. मीन भी कैलकुलेट करो मतलब x बार. नेक्स्ट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करो. नेक्स्ट क्या है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस मतलब बीटा 1 एंड बीटा 2. इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. ये हर एक पॉइंट आपका एक सिंगल एमसीक्यू हो सकता है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट दिस. ओके. तो वही मैंने लिखा है. ए पॉइंट गिवन है. वी नो द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स अबाउट अ पॉइंट. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. मैंने आपको पहले बोला था ये आपको कैसे भी करके याद रखने. एज इट इज वैल्यू पुट करो यू विल गेट द फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट्स है ना. सो या mu1 इज ऑलवेज 0 इन एनी एग्जाम्पल. mu1 आपका हमेशा होता है पहला सेंट्रल मूवमेंट. फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज 0. mu2 इज mu2 डैश माइनस mu1 डैश स्क्वायर. सो 20 mu1 डैश mu2 डैश इज 20 माइनस 2 स्क्वायर. सो इट इज 16. mu3 is mu3 dash minus 3 mu1 dash mu2 dash plus 2 mu1 dash cube. So it become mu3 dash is 40 as it is values है. Okay. 3 mu1 dash mu2 dash plus okay, आप चेक कर सकते हो इजीली. That value is minus 64. Okay. Next is as it is value put करो you will get that value to be 62. So my mu1 is 0, mu2 is 16, mu3 is minus 64 and mu4 is 162. ये हो गया मेरा पहला पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है मीन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम माय प्रीवियस डिस्कशन व्हाट इज द मीन. मीन का फॉर्मूला क्या है. दैट पॉइंट प्लस mu1 डैश. दैट पॉइंट प्लस mu1 डैश. ओके. प्लीज रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स. सो मीन इज इक्वल टू पॉइंट प्लस mu1 डैश. पॉइंट आपका 5 था. mu1 डैश it is given which is 2, so your value is 7. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. उसका फॉर्मूला क्या. अंडर रूट ऑफ mu2. हियर mu2 इज द सेंट्रल मूवमेंट. यहाँ पे mu1 क्या है. मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट है. प्लीज सी द डिफरेंस. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. इट इज mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब. ओके. हाँ. सो I think there is some mistake here. mu3 square upon mu2 cube ही है ये. ठीक है. So that we need to correct. That I need to correct. क्या आंसर मिलेगा. कैन एनीवन टेल मी. प्लीज डू इट. यही वैल्यूज है. mu3 स्क्वायर अपॉन mu2 क्यूब. नहीं क्यूब करके बोलो. सेम ही मिल रहा है क्या. तो मतलब आंसर करेक्ट होता. आंसर बस बोल दो क्या है एक बार चेक करके. This is a typing mistake which I will
1 ही आ रहा है ना? Yes. ओके, तो आई थिंक आंसर करेक्ट ही है. चलो, आंसर करेक्ट है, बस वो करेक्शन मुझे करना है. सो आई विल डू दैट. या नेक्स्ट इज coefficient of kurtosis, which is mu4 upon mu2 square. Put all these values as it is. You will get that value to be this. Okay, अभी मुझे ये बोलो, what is the observation from beta 1? बोलो, what is the observation from beta 1? Beta 1 is positive. It means what? It is क्या होता है इसका मीनिंग? बीटा 1 पॉजिटिव आता है तो आपको ग्राफ क्या मिलता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यू, पॉजिटिवली और पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ. नेक्स्ट, कर्टोसिस में रिजल्ट क्या था? बीटा 2 इक्वल टू 3, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3. सो हियर बीटा 2 इज लेस देन 3. सो दैट इंप्लाइज अभी उन्होंने नहीं पूछा था, बट आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, नाउ आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल. ओके, ये एक्चुअली सिलेबस में मैं नहीं ऐड करने वाला, बट मैं आपको एक एक्सक्यूज मी सर, हाँ, एक बार कर्टोसिस का मतलब दोबारा समझा सकते हैं? ओके. यही है इसका मीनिंग, ये जो दिखा है. सी, कर्टोसिस मतलब आपको बीटा 2 की वैल्यू मिलने वाली है. ठीक है, आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ डायरेक्टली. सॉरी, कर्टोसिस मीन्स आपको बीटा 2 की वैल्यू मिलने वाली है. सो इफ दिस वैल्यू, कर्टोसिस मीन्स बीटा 2, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 3, तो आपको ऐसे नेचर का ग्राफ मिलेगा, फ्लैट. दिस इज कॉल्ड एज प्लैटिकर्टिक. ठीक है. अब अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करते हो ना, जो आपके पास डाटा है, आप एक्सेल में भी जाते हो तो डाटा से डायरेक्टली ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो. बीटा 2 कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो, अरे सच में वैल्यू मुझे लेस देन 3 मिल रही है. दिस यू कैन क्रॉस वेरीफाई. ओके, सो बीटा 2 इज लेस देन 3 मींस दैट ग्राफ इज लुक लाइक दिस. ओके, फ्लैट ज्यादा होगा. सी, ये जो सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है ना, दिस वी हैव टू अप्लाई फॉर अ लार्ज डाटा, जो करोड़ में आता है या इतने बड़े इसमें आता है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना ऑलरेडी इट्स अ लेंथी जॉब. ठीक है, आपको पता है अभी सिस्टम से डायरेक्टली ग्राफ जनरेट होगा, बट वो उतना क्विकली नहीं जनरेट होता. इसलिए इन सम केसेस वी नीड टू यूज द स्टैटिस्टिकल टूल्स. जब आप रिसर्च में जाते हो तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पार्ट है. ठीक है, तो या कुछ ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको विदाउट ग्राफ अगर आपको कोई कंक्लूजन निकालना है, तो आपको ये पास यही एक ऑप्शन है. ठीक है, आपको एक रफली नेचर तो समझ में आएगा कि डाटा कैसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, वेदर इट इज फ्लैट, है ना. मतलब फ्लैट का मीनिंग क्या होता है? ज्यादातर डाटा आपका एक मतलब एवरेज वैल्यू के अराउंड ही है ना. ये आप देखो ना, ये सारे वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, तो सारा डाटा आपका इसके अबाउट ही है. ये जो भी लाइन होगी इस लाइन के अबाउट ही है. ऐसे कुछ कंक्लूजन आप वहां से निकाल सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट? इफ दैट बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, देन विल गेट लेप्टोकर्टिक, हाई पीक होगा. पीक ग्राफ ऐसे बोलते हैं इसको, हाई पीक, एच टाइप का ग्राफ होगा. And if it is equal to 3, then it's a normal distribution. ऐसे normal, high भी नहीं और low भी नहीं. This is for beta 2 equal to 3. इतनी इंफॉर्मेशन आपको कर्टोसिस से मिलती है. Is it clear now? Yes sir. ये जो क्वेश्चन है, दिस आई वांट टू स्किप. इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस टू फाइंड द मूवमेंट्स. क्यों आपको मैं बोलता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने आपको बीटा 1 दिया था, बीटा 1 डैश, बीटा 2 डैश, बीटा 3 डैश एंड बीटा 4 डैश. वहाँ से आप कैलकुलेट करना ईजी होता है. यहाँ पे आपको μ1, μ2, μ3, μ4 डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ μ1. आपको चाहिए यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट्स, फाइंड द 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन. उन्होंने बोला है क्लियरली. सो आपको सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करने. μ1 का ये फॉर्मूला होता है, μ2 का ये फॉर्मूला होता है, μ3 का ये, μ4 का ये, है ना. तो अभी ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डाटा की बने. दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा. मुझे अगर μ1 कैलकुलेट करना है, μ1 क्या आने वाला है, μ1 क्या आने वाला है, कैलकुलेट भी करता हूँ, क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है.
इफ यू वांट यू कैन चेक दिस, आप कैलकुलेट करके देखो वो जीरो ही आने वाला है। फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। μ2 कैलकुलेट करना है, μ3 कैलकुलेट करना है और μ4 कैलकुलेट करना है। ओके, सारे फॉर्मुलेस मैंने लिखे, आर की वैल्यू चेंज करके 1 2 3 4। हाँ, अब अगर मुझे ये कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए मुझे एक टेबल कंसिडर करना होगा जिससे ये सारा कैलकुलेशन मैं वहाँ पे शो कर सकूँ। सो मैं एक टेबल आपको दिखाता हूँ। टेबल भी कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो भी आपको समझ में आएगा। एक कॉलम में मैं एक्स की वैल्यूज लेता हूँ 61 64 समथिंग, ठीक है। एक कॉलम में फ्रिक्वेंसी लेता हूँ लाइक से 5 18। हाँ, अभी 1 बाय 1 जाते हैं। हाँ, ये कॉलम कैलकुलेट करने के लिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मुझे क्या चाहिए, ये समीशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे कौन सा कॉलम कंसिडर करना होगा? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, बोलो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार, है ना। ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। इसकी जो भी सम होगी दैट इज माय दिस सम, ठीक है। समेशन ऑफ एफ मुझे यहाँ से भी मिलने वाला है, ओके। और मीन में सेपरेट कैलकुलेट करूंगा, एक्स बार में साइड पे कैलकुलेट करूंगा। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये तो मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी हो सकता है, या अगर उसके लिए भी एक कॉलम कंसिडर करना है ना तो हम वैसे भी जा सकते हैं। लेट मी गो इन डिटेल। मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक पहला कॉलम लेता हूँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट ये पहला कैलकुलेट करना है तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम। नेक्स्ट ये स्क्वायर का कैलकुलेट करना है तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम। ऐसे कंटिन्यू करूंगा अप टू 4। आई विल शो यू ऐसे, ठीक है। एक्स का कॉलम, एफ का कॉलम, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर क्यूब एंड 4। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैल्शियम में फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप कैल्शियम में क्या करो, कंसिडर दिस एज एक्स इन कैलकुलेटर, दिस एज वाई इन कैलकुलेटर, और फिर आपको क्या करना है कैल्शियम में डायरेक्टली मैं आपको शो करता हूँ, आप बाद में भी रिपीट कर सकते हो। पहला कोई भी एक कॉलम एक्सप्लेन करता हूँ, ये कॉलम एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे कैल्शियम में। हाँ, पहले क्या है वाई, मतलब वाई एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करनी होगी पहले। मीन क्या आ रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक। मीन मैंने कैलकुलेट करके रखा है, हाँ 67.45। हाँ, तो आप ये कॉलम कैसे कैलकुलेट होगा, एफ मतलब वाई कैल्शियम में बोल रहा हूँ, एक्स माइनस 67.45 क्यूब, और फिर कौन सा बटन प्रेस करना है फॉर्मूला रन करने के लिए, कैल्क CLC। हाँ, कैल्क बटन प्रेस करो। कैल्सी विल आस्क फॉर एक्स क्वेश्चन मार्क, ऐसे आ जाएगा। एक्स क्वेश्चन मार्क आता है तो एक्स 61 पुट करना है, वाई क्वेश्चन मार्क आता है तो वाई ये वैल्यू पुट करनी, यू विल गेट दिस आंसर। प्लीज चेक, एनीवन प्लीज चेक, और मुझे बोलो तो मैं आगे जाता हूँ। ऐसे आपको ये कॉलम कंसिडर करना है। अब ये आपको इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाले एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, बट ऐसा हो सकता है मैं आपको μ1 का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, फाइंड ओनली μ1, सॉरी μ1 तो 0 ही आने वाला, फाइंड ओनली μ2, ऐसे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन, μ2 या μ3। सो प्लीज चेक दिस कॉलम, कोई भी चेक करो जल्दी से, आ रहा है तो मुझे बोलो यस, बोलो मिल रहा है तो मुझे यस बोलो, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। समझ में आ रहा है ये, हो रहा है कि नहीं, बस उतना बोलो, मुझे नहीं आ रहा है तो यस सर यही आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो भी किया है मैंने वैसे ही किया है कैलकुलेशन, सो दैट यू कैन चेक, ठीक है। तो इसमें इतने सारे 4 वैल्यूज आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, बट मे बी यू नीड टू फाइंड μ2 μ3, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप पे हो सकती है, ठीक है। सो ऐसे मैंने सारा किया है क्वेश्चन कंप्लीट। फिर μ1 0 ही होता है, ठीक है। μ2 1/n मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय दिस स्क्वायर की समेशन, मतलब ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है। ये μ3 क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, μ4 क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1/100 मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसे सारा वो कैलकुलेशन है, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड स्क्यूनेस, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, फॉर्मूला रॉन्ग है, एंड देन सो दैट यू नीड टू करेक्ट, अगर कैलकुलेशन भी रॉन्ग है तो एक बार चेक करो, एंड देन कर्टोसिस μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, ओके, एंड यू विल गेट दिस। ऐसे सारा वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े रेयर है, एटलीस्ट आपको एक वैल्यूज तो कैसे कैलकुलेट करने वो पार्ट तो समझ में आना चाहिए, ओके।
जस्ट 1 मिनट, बस देखता हूँ इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज मैंने ऐड किए या नहीं। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके, सो एट द एंड आई विल टेक द कंबाइन एमसीक्यूज सारे टॉपिक के, वो बेटर होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मूवमेंट। इसमें कुछ ज़्यादा थियरी नहीं है, इसमें करना क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, फिर उसके बाद कर्टोसिस, क्यूनेस, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा वैसे वैसे फॉर्मूलेज आपको याद रखने। ओके, जस्ट 1 मिनट। आई थिंक जो आपका यूनिट 1 है वो ऑलमोस्ट हो गया। ओनली फ्यू टॉपिक्स आर रिमेनिंग, दिस क्वार्टाइल्स एंड इन क्वार्टाइल्स रेंज। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मे बी ना नेक्स्ट सेशन। ओके, अभी उसकी पीपीटी रेडी नहीं है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। अब ये कंबाइन है क्योंकि एट देन यूनिट 1 यूनिट 2 स्प्लिट करके दिया, बट एट देन इट्स अ वन सिंगल। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, ये सारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। सो now I will take the next topic. Now this topic is from unit 2. This topic is from unit 2. Okay, yeah, just let me take few MCQs if ऐसा होगा कि give me 1 minute, let me find if MCQs are there. Just give me 1 minute. If it is possible to take few MCQs, so I can take. ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैसे लेने वाला। ओके, ठीक है, आई विल टेक MCQs इन नेक्स्ट लेक्चर में भी। अभी मैं एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो इसमें जो आपका सेकंड यूनिट है, बेसिकली दैट सेकंड यूनिट द टाइटल इज रिग्रेशन एनालिसिस। योर यूनिट 2 इज रिग्रेशन एनालिसिस। मैं कंबाइन ही लेने वाला दोनों यूनिट, कुछ सेपरेट करके नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली 2 मेजर टॉपिक है। वन इज रिग्रेशन इटसेल्फ एंड सेकंड इज द कोरिलेशन। ओके, सो टिल नाउ वी नो फ्यू प्रॉपर्टीज और हाउ फ्यू स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, बट जो नेक्स्ट हमें लर्न करना है, या जो यूनिट 2 में बेसिकली जो हमें लर्न करना है, दैट इन दैट यूनिट इन यूनिट 2 नाउ बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ओके, मतलब आपके पास अगर एक ही एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक कोई एक्सपेरिमेंट है, आपने एक मतलब आज आपने अगर वो परफॉर्म किया है, ठीक है, एंड दैट सेम एक्सपेरिमेंट इफ यू रिपीटेड टुमारो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस 2 वेरिएबल और दिस 2 सेट ऑफ